Assalamu alaikum students. So we are done with questions 12. So let's start from 13 onward. The diagram shows the position of 3 points A, B, and C. P is due north of A. So this line is vertical. And the bearing of C from A is 220. Bearing of C from A is 220, this angle. So AB is given 25 kilometer and AC is given 38 kilometer. Find the bearing of A from C. आपने A की bearing find करनी है C से. So what you will do, you will draw the north on C. ठीक है, यहाँ north पे north बनाएंगे आप C पे. So this is north and you have to find this angle. ठीक है, you have to find this angle. अब आपको बच्चों पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, अब दोनों नॉर्थ पैरेलल होते हैं ना, तो ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो देयर एंगल एड अप टू 180. दीज टू एंगल्स एड अप टू 180, क्योंकि पैरेलल लाइंस को लाइन कट करती है तो इंटरनल एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. बेसिकली एंगल्स एड अप टू 180, ये आप बात याद रखें. तो अब मेरे पास क्या ये एंगल है? द आंसर इज यस. हाउ बेटा? दैट विल बी 360 माइनस 220. ठीक है, दैट विल बी 240. 360 माइनस 220, दैट विल बी 140. तो ये एंगल आपके पास क्या है बच्चों? 140 है. This angle is 140. So what will be this angle? What will be this angle? This angle is going to be 180 minus 140. ठीक है? So the resulting answer is 40. But you write bearing in 3 digits. So it will be 040. So moving on to next part, which is show that BC. अब बच्चे कहते हैं सर जो दिया हुआ है, दिया हुआ होने का मतलब है आपने, वो कह रहा है शो करें. तो शो करने का मतलब है यू हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली BC. तो बेटा देखिए BC कहाँ पे है, ये है ना. ठीक है, दिस इज BC. अब बेसिकली आपको विक्ट्री साइन दिया हुआ है, लाइक टू साइड्स आर गिवन. ठीक है, टू साइड्स आर गिवन और इंक्लूडेड एंगल्स इज आल्सो गिवन. तो हाउ टू फाइंड द ऑपोजिट साइड यूजिंग कोसाइन रूल. तो बच्चों आप BC कैसे फाइंड करेंगे? BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 38 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर minus 2 times 38 into 25 into cos of 140. ठीक है, पुट एवरीथिंग इन कैलकुलेटर. सो क्या आएगा ये? 38 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर माइनस 2 टाइम 38 टाइम्स 25 इंटू कॉज ऑफ 140. तो आंसर आएगा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3524.484. ठीक है, so when you will take square root of this, square root of the answer, and you will get 59.36. So it will be 59.367. So let's call it 37. So here you have bacho BC is equal to 59.37. So up to 3 significant figure, it will be BC 59.4. So moving on to next part, calculate the bearing of C from B. C from B. C from B. So where is B? Here you have the calculate the bearing of C from B. तो बेटा आपने बेयरिंग फाइंड करनी है C की B से. ठीक है, तो here you have B. तो बच्चों इसको ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें B पे. This is B and you have to find, this is
दिस इज नॉर्थ, इस नॉर्थ के फुट को यहाँ पे ज्वाइन करें सी के साथ, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल बच्चों। हाउ? देखें, वी हैव दिस एंगल, दिस इज 180, so all we need to do is to just simply find this angle. So how we can find बच्चों this angle? हमने ये वाला एंगल कैसे फाइंड करना है? लेट्स कॉल इट x एंड यू विल हेल्प मी टू फाइंड x। कैसे? देखें, एंगल के ऑपोजिट साइड गिवन है, ठीक है, एंड सिमिलरली इस एंगल 140 के ऑपोजिट साइड भी गिवन है, BC। BC क्या निकाली अभी हमने? BC निकाली थी 59.37, ठीक है। So now let's apply sine rule. So it will be sine of x divided by opposite side x के है 38 is equals to sine of 140 divided by opposite side which is 59.37. So sine x is equals to 38 sine 140 divided by 59.37. Put this in calculator. So 38 times sine 140 divided by 59.37. So ये आएगा 0.4 sine x is equal to 0.4114, ठीक है। So x is going to be sine inverse of 0.4114, ठीक है। Shift sine inverse answer. So here you have the angle x equals to 24.29, right बच्चों? 24.29. So we, as you know that we have to calculate this angle. तो अब बताइए पूरा एंगल क्या होगा ये वाला? This angle is 24 point. So this whole angle is 24 plus 180, ठीक है। 24 के अंदर आप 180 को ऐड कर दोगे, so it will be bearing is 180 plus 24.29. So this is going to be 204.29 degree, right बच्चों? Next, moving on to question 14. In the rectangle ABCD, AB is given 9 centimeter, AD is also given, AB is 9, AD is, this is AD which is 5, and then DAQ, this angle is given DAQ which is 55, and CBP, C, B and P, this angle is also given 35. AQ is perpendicular to BP, AQ is perpendicular to BP, ठीक है, that makes angle 90. So the first question is calculate AQ. तो बेटा where is AQ? This length is AQ, ठीक है। तो can you see a right triangle? ठीक है, this right triangle बच्चों आपको नजर आ रही है right triangle? इस right triangle के अंदर से here we have the angle 55. This is base. So this is hypotenuse, so we have to calculate hypotenuse because opposite to angle this is perpendicular, this length, okay? तो मैंने base दिया हुआ और hypotenuse find करना है, तो I will apply cos 55 is equals to base which is 5 divided by base over hypotenuse, that is AQ. So AQ is equals to 5 over cos 55. Okay बच्चों, 5 over cos 55.
So the answer is 5 divided by cos 55. So the answer is 8.72. ठीक है, 8.72. Look at the next part. Calculate AR. Where is AR? Only this length. Only this length. तो देखिए भाई, I can still find this AR. How? Because you know that बच्चों, this is also a right triangle. ठीक है? And now my question is to calculate this angle, this side AR. ठीक है? As you know that this whole angle is 90. Okay बच्चों, this whole angle is 90. So this angle is 55. So the remaining angle will be 90 minus 55. So for 90 minus 55, so it will be 35. Okay बच्चों, so it will be 35. So let's place here angle 35. Now it's very simple. कैसे प्रोसीड करेंगे? टू फाइंड ए आर, देखें भाई, एंगल के ये 90 के सामने जो होता है बेटा, दिस इज हाइपोटेन्यूज. सो दिस लेंथ इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस. सो हाउ टू फाइंड बेस? क्या करेंगे? cos a cos 35 is equals to AR base over hypotenuse, which is 9. So again AR is going to be 9 times cos 35. तो 9 टाइम cos 35 इज द आंसर. तो बच्चों ये आएगा 7.37. So this is 7.37. Now come to next part, which is part 3. Calculate the area of the triangle ARB. Where you can see a triangle ARB. This is ARB. So this is the triangle बच्चों. ठीक है? So to find the area of this triangle बच्चों, you have the base. अब देखें, there are two ways. यहाँ पे दो मेथड है इसका एरिया फाइंड करने के ना. एक तो ये है कि आपको ये लेंथ दी हुई है AR और ये लेंथ दी हुई है 9. ठीक है, इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है. सो सिंपली अप्लाई ये वाला फार्मूला. देखें भाई, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 AB साइन C. ठीक है, सो दिस इज 1/2. A is 9, B is this AR, which is 7.37, and sine of angle between them, so sine 35. So this is 0.5 times 9 times 7.37 into sine 35. So area of the triangle is 19.02. ठीक है बच्चों, this is the area of triangle. So 19.02 यूनिट उसने खुद लिखा हुआ है. So calculate the total area shaded in the triangle. अब now you have to calculate the total area. तो total area बेटा ये वाला तो area ऑलरेडी आपके पास है ना. ठीक है, ये आपने निकाल लिया था 19.02. So now you have to target this area. So to target this area, देखें ये मेरे पास AQ भी है. This length is AQ and this is given in the first part, AQ. And this length is AR. This is given in the second part, which is 7.37. So if I ask you only R2Q, तो ये R2Q क्या होगी? आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो फर्स्ट प्लीज फाइंड, यही वर्किंग कर लेते हैं. RQ बच्चों क्या होगी? RQ होगी 8.72 माइनस 7.37. ठीक है, so 8.72 minus 7.37. So the answer is 1.35. Right? So actually I want to find the area of this small triangle. तो देखिए भाई, एक और देखें जरा. ये दो साइड्स बेटा पैरेलल हैं. ठीक है, रेक्टेंगल है तो पैरेलल है.
So if this angle is 35, so this angle is also 35 just because of the alternate angle. So can we say that this angle is 35? ठीक है? So look at the triangle. अब बच्चों, this is the right angle triangle. Okay. So my one of the length is given, which was 1.35. So now I want to find the this is by the way hypotenuse. Okay. तो मैं base into height लगाना चाह रहा हूँ. So let's target and find PR. तो कैसे find करेंगे भाई PR? PR find करेंगे, एंगल के ऑपोजिट है ना, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा. तो बच्चों tan लगेगा यहाँ पे. Tan of 35 is equals to perpendicular which is PR over base which is 1.35. ठीक है? 1.35 means this length. ठीक है? So cross multiply करें. 1.35 tan 35 is equals to PR. So 1.35 into tan 35. Okay. So 0.9453. बच्चों मैं अप टू 4 डेसिमल लिख रहा हूँ. देखिए बहुत छोटी वैल्यू आए तो इट्स बेटर कि आप ज़्यादा डेसिमल लिख लें ताकि आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट आए. ठीक है? चलो अब बताएं भाई एरिया क्या होगा. एरिया विल बी 1/2. बेस लें 1.35. हाइट लें जो भी आपने फाइंड की है 0.9453 प्लस एरिया ऑफ द लार्जर ट्रायंगल. तो वो क्या थी? 19.02 प्रीवियस आंसर था. बेटा इसको कैलकुलेटर में डाल लें. 0.5 टाइम 1.35 टाइम्स 0.9453 plus 19.02. So that is your final answer. Right, बच्चों? So the answer is 19.66. So 19.66 cm square. So that is your final answer. Moving on to question 15. The diagram shows the position of tunnel entrance T and two road junctions P and Q on horizontal ground. ठीक है? Q is due north of P and T is on a bearing of 62 degree from P. So PT is given 450 and QT is also given 720. Calculate the bearing of T from Q. T from Q. तो बेटा T from Q का मतलब ये है कि from, मैंने आपसे कहा था कि from जब भी कहेगा तो आपने क्या करना होगा? Q पे नॉर्थ बनाना होता है एंड यू हैव टू कैलकुलेट देन दिस एंगल. ठीक है? दिस इज बेयरिंग ऑफ T फ्रॉम Q. ठीक है? क्लॉकवाइज एंगल. तो अब हम इस एंगल को फाइंड कैसे करेंगे? देखिए भाई, कैन आई फाइंड दिस एंगल, दिस इंटरनल एंगल? द आंसर इज यस यूजिंग साइन रूल. ठीक है? तो गौर से देखें. इसको मैं एक्स कह देता हूँ. सो दिस इज साइन एक्स डिवाइडेड बाय 450 is equals to sine 62 divided by 720. So sine x is equals to 450 sine 62 divided by 720. So 450 into sine 62 divided by 720. तो आंसर क्या आया? साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0.5518. So x is going to be sine inverse of 0.5518. तो shift sine inverse answer x is going to be 33.49 degree. ठीक है बच्चों? तो बेरिंग क्या होगी देखें. एंगल ऑन अ लाइन इज 180. So you will subtract from 180 this 33 point something. So 180 minus answer. So beta it is 146.5
0.51 डिग्री। ठीक है, सो बेरिंग इज मोस्टली बेटा जो आंसर दिए जाते हैं वो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए जाते हैं। ठीक है, सो 146.51 डिग्री, बट आई समटाइम्स प्रेफर 2 डेसिमल। ठीक है, आपने यहाँ नहीं करना, ये मैंने लिखा था, आपने यहाँ पे इसको जो स्पेसिफाइड इसकी होती है बेटा वहाँ पे आपने लिखना है। नेक्स्ट 146.51 डिग्री। सो नेक्स्ट बेटा, दिस इज क्वेश्चन 16। एक्चुअली तो ये बेसिकली 3D शेप का क्वेश्चन है, और दिस क्वेश्चन मस्ट बी इन 3D शेप वर्कशीट, but let's see. A vertical mast XY is positioned on the horizontal ground. The mast is supported by 4 cables attached to the mast at P and to the ground at points A, B, C, and D. ठीक है, Y is the center of the square ABCD and PY this whole length is given. ये height इसको इसकी दी हुई है बच्चों आपको, which is 7.50. So given that AB is 3.65, show that AY is correct to 3 significant figures. Okay. बेटा एक बात आप याद रखें कि जो इसकी बेस है वो स्क्वायर है, तो इट्स मीन्स अगर ए बी की लेंथ दी हुई है 3.65, सो ऑल लेंथ्स आर 3.65 ईच। ओके, सारी लेंथ्स क्या होंगी 3.65 हो जाएंगी। नेक्स्ट, शो दैट ए वाई इज इक्वल्स टू, तो बेटा एज यू नो दैट दिस इज द स्क्वायर, तो मैं आपको थोड़ा सा इस डायग्राम पे फोकस करता हूँ। सो हु विल एग्री विद मी दैट दिस एंगल इज 90। ठीक है, स्क्वायर है ना, तो इसके कॉर्नर्स एंगल सारे 90 होंगे। सो इफ दिस इज 3.65, दिस इज 3.65, तो बेटा हाउ टू कैलकुलेट द होल लेंथ ए सी, ए सी विल बी दी हाइपोटेन्यूज, तो उसको हम हाफ करेंगे तो ए वाई आ जाएगा। सो लेट्स फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल ए सी, तो बेटा ए सी आएगा, ए सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से 3.65 स्क्वायर प्लस 3.65 स्क्वायर. So whatever the answer is, just take its square root. 3.65 square plus 3.65 square. So it is 26.645. But as you know that कि आपने तो बेटा कैलकुलेटर के अंदर ही करनी है ना सारी कैलकुलेशन, so स्क्वायर रूट लें उसी का डायरेक्टली, so it will be 5.16. ठीक है, it will be 5.16. So AC is 5.16, but as you know that बेटा कि हमें तो ए वाई चाहिए ना, तो एग्री इफ आई डिवाइडेड बाई 2, बच्चों ए वाई क्या होगा, ए सी को 2 पे डिवाइड कर दें, सो हियर यू हैव द आंसर, तो डिवाइड बाई 2, सो यू विल गेट ए वाई इज इक्वल्स टू 2.58. ओके बच्चों, 2.58 इज द फाइनल आंसर, तो दिस इज द हाइट ए वाई। ओके बच्चा, this is the length from A to Y. Calculate the length of one of the cables used to support the mast. अब देखिए भाई किस केबल की बात कर रहे हो, इन केबल्स की बात कर रहे हो, सारी जो केबल्स हैं इनकी लेंथ सेम है, इनमें से कहता है किसी एक की मुझे लेंथ फाइंड करके दे दो। ठीक है, इनमें से हमने किसी एक की लेंथ फाइंड करनी है, तो स्टूडेंट्स इफ यू लुक एट द पी वाई वॉज गिवन, तो बेटा दिस लेंथ दिस हाइट वॉज गिवन, दिस वन, तो ये आपको दी हुई है, ये देखिए, और ए वाई हमने अभी फाइंड कर ली है, तो बेटा एग्री करते हैं कि मैं अगर ये वाला ट्रायंगल बाहर बना लूँ, एग्री, इफ आई मेक अ ट्रायंगल हेयर whose this point is y, this is top point P and this point is A,
सो इसको यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। सो पी वाई दिया हुआ था क्वेश्चन में 7.50, ए वाई दिया हुआ था 2.58, सो यू हैव टू फाइंड ए पी। सो ए पी और पी ए इज हाइपोटेन्यूज। बेटा कैसे निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से? 7.50 स्क्वायर प्लस 2.58 स्क्वायर, सो ए पी इज इक्वल्स टू, इनका स्क्वायर रूट लें बच्चों, सो स्क्वायर रूट ऑफ 7.50 स्क्वायर प्लस 2.58 स्क्वायर, तो आंसर आता है 7.93, ठीक है। सो द आंसर इज 7.93। ये है बेटा उस उन केबल्स की लेंथ, और सब की लेंथ सेम है, ठीक है, इक्वल लेंथ सेम। सो कैलकुलेट ए पी बी। वेयर इज ए पी बी? ए टू पी, पी टू बी, ठीक है बच्चों, दिस एंगल, दिस टॉप एंगल। तो देखें ये एक 3D शेप है। इमेजिन करें कि इस पिरामिड को आप काटते हो ना, काट के इसको इसका नेट बनाते हो, तो एग्री करेंगे आप बच्चों कि इसका नेट वैसे कैसे बनेगा? आप इमेजिन करो बच्चों, कैसे बनेगा इसका नेट? इसका नेट ऐसा होगा ना कुछ, 4 ट्राइंगल्स होंगी आइडेंटिकल ऐसे, ठीक है। और हमें चाहिए ये वाले ट्राइंगल। जब इस ट्राइंगल को बेटा आप इसका नेट बनाओगे, इसको आप ऐसे नीचे ओपन करेंगे, तो दिस फेस बिकम्स दिस ट्राइंगल। एग्री बच्चों? ये फेस जो है इस मास्ट का, वो ये ट्राइंगल बन जाएगी नीचे वाली। अब वो ये वाला एंगल आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है, ये वाला एंगल आपसे मांग रहा है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, देखें ये एंगल कैसे फाइंड होगा। मैं इस ट्राइंगल को इसी फॉर्म में ही बाहर बना देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने इस ट्राइंगल को उठा के बाहर लिख लिया। तो ये क्या है बच्चों? P, ये क्या है? A, ये क्या है? B। दिस इज माय क्वेश्चन दैट फाइंड A P B। सो opposite side is given 3.65। अच्छा, who will agree with me that P to A and P to B is just the previous answer, that was 7.93, ठीक है, 7.93, 7.93, ठीक है, that's it। so इसको हम नीचे ले जाते हैं बच्चों। चल, ये है बच्चों आपकी ट्राइंगल, इसकी अब हमने एंगल फाइंड करना है x। तो बेटा जब तीनों साइड्स इन्वॉल्व होती हैं किसी भी ट्राइंगल में, तो वहां से आप एंगल कैसे निकालते हो? यूजिंग कोसाइन रूल। तो बेटा आपने कोसाइन रूल लगाना है टू फाइंड द एंगल x। तो x के ऑपोजिट क्या है? x के ऑपोजिट है 3.65 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7.93 स्क्वायर प्लस 7.93 स्क्वायर minus 2 times 7.93 into 7.93 into cos of x। एग्री? कोसाइन रूल बच्चों लगाया है, बस सिंपल सिंपल कोसाइन रूल लगाया है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि फ्रैक्शन बना लिया करें, 3.65 स्क्वायर माइनस 7.93 स्क्वायर माइनस 7.93 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय minus 2 into 7.93 into 7.93 is equals to cos of x. Put everything in calculator. So 3.65 square minus 7.93 square minus 7.93 square divided by minus 2 times 7.93 times 7.93. Okay. So the answer is 0.8941. Okay, this is cos x. Beta simply takes its inverse. So x is going to be cos inverse of, ये जगह कम क्यों पड़ जाती है, 8941, ठीक है। So shift cos inverse answer. So that is x is equals to 26.6 degree। Okay बच्चों,
26.61 डिग्री। The angle of elevation of x from A is 77.0 डिग्री। अब x कौन सा पॉइंट है, A कहाँ पे है और एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बन रहा है। सो लेट्स प्लीज गो बैक टू द डायग्राम। ये देखिए भाई, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है और वो x, ये देखिए A पे खड़ा है ऑब्जर्वर, और वो बच्चों किसको देख रहे हैं, A पे खड़ा होकर x को देखता है। ठीक है, A पे खड़ा होता है और x को देखता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये देखें, ये है आपका बेस पॉइंट y, ये है आपका टॉप पॉइंट x, और ये है आपका बच्चों पॉइंट a। ठीक है, प्लीज एग्री करेंगे कि इस ट्रायंगल को मैंने निकाल लिया है बच्चों बाहर, एंड दिस एंगल इज श्योरली 90 डिग्री। तो दिस एंगल इज बेटर 90 डिग्री। अब आपको ऑब्जर्वर जो है वो x को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका दिया हुआ है 77, if I'm not wrong. So it was given 77 degree. Yes. Okay. So who know कि बेटा what was y? y क्या, सॉरी ए वाई, जो बेस है इस ट्राइंगल की वो क्या थी बेटा, ए वाई हमने क्या निकाला था 2.58। 2.58 was the base। ठीक है, सो ये जो था गिवन डाटा। अब क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द हाइट एक्स वाई। तो बच्चों देखें, लुक एट दिस ट्राइंगल, क्या मैं ये इस राइट ट्राइंगल की बेस दी हुई है परपेंडिकुलर फाइंड कर सकता हूँ अगर एंगल दिया हो तो। यस, आपने tan अप्लाई करना है। तो बच्चों इसको मैं यहाँ से ये यहाँ पे ले जाते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स, सारा ही छोटा हो गया। एनीवे, सो tan of 77 is equals to perpendicular which is xy over base 2.58. So xy is equals to 2.58 into tan 77. So 2.58 into tan 77. So this is 9.8757. So 9.8757. So 9.88 is the height. Okay बच्चों, 9.88 is the height। मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी? ए वाई ओके। बेटा मैंने कैलकुलेटर में मिस्टेक कर दी है, आई जस्ट पुट 2.28, so 2.58 into 1077। ओके, सो दैट्स द आंसर। वो जो आंसर क्या है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 11.18। ओके बच्चों, so it is 11.18। Next part is calculate the angle of elevation of x from the midpoint of AB। अच्छा, अब बेटा ऑब्जर्वर पता है कहाँ पे खड़ा है, पहले तो ए पे था ना, अब वो ए के आता है, ए बी के मिड पॉइंट पे आता है, तो ये मिड पॉइंट है, दोबारा पी एक्स को देखता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये देखें सर, यहाँ पे मैं एक बहुत आपको बेटा देखना पड़ेगा कि लेट्स सपोज अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, इधर से वो देखता है एक्स को, तो उसका वाई से डिस्टेंस, और ये एक राइट ट्रायंगल बनती है बच्चों यहाँ पे, ये एक वाइट राइट ट्रायंगल बनती है ना, इसकी बेस क्या हो जाएगी, मैं इस पॉइंट को एम कह देता हूँ। ठीक है, तो
इस पॉइंट को एम कह देता हूँ और यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए भाई, इस पॉइंट का मैंने नाम एम रखा था। ये पॉइंट स्टिल वाई है और ये एक्स। अब एक्स वाई की लेंथ हमारे पास है, जो एक्स वाई की हाइट है वो हमारे पास थी, दैट वाज 11.18। ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि इसका जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करें। सो लेट्स कॉल इट वाई। ठीक है। अच्छा एक बात बताएं बेटा, ये लेंथ कितनी होगी एम वाई, व्हाट विल बी द एम वाई? देखें आप इस स्क्वायर को गौर से देखें बच्चों। मैं इस पॉइंट का नाम मैंने एम रखा, ये इस पॉइंट का बेटा नाम मैंने क्या रखा है, एम रखा है। तो स्टूडेंट्स एम से लेकर, ये बेसिकली देखें ना, ये पूरी लेंथ कितनी है, 3.65 है ना। तो बेटा एम से लेकर वाई तक हाफ होगी ना 3.65 का, स्क्वायर है ना। तो ये पूरी लेंथ है 3.65। तो बेटा जो हाफ होगी एम वाई, जो कि बेसिकली ये है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी 3.65 का हाफ। सो और फिर हम क्या लगा लेंगे इस पे, 10 लगा लेंगे। ठीक है, ओके। चल, सो एम वाई क्या है, एम वाई इज 3.65 का हाफ। So 3.65 divided by 2. So 1.825. 1.825. So how to find y now? So tan y is perpendicular 11.18 divided by base, which was 1.825. इसका इन्वर्स करें, shift tan 11.18 divided by 1.825. So this is y is equals to 80.73 degree. Right, बच्चों? So this is 80.73 degree. Next, a boat leaves A and travels 12 kilometer to B. ठीक है? A boat leaves A and travels 12 kilometer towards B. The boat leaves A at 10:25 and travels at a speed 15 kilometer per hour. At what time does the boat arrive at B? ओके। तो अब बच्चों आप क्या करें, देखें, लेट्स कैलकुलेट टाइम। अगर बच्चों ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है तो टाइम क्या होगा भाई, टाइम विल बी, टाइम विल बी, you know that speed is distance over time। यहाँ से बच्चों टाइम को बनाए सब्जेक्ट, क्या आता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस है बच्चों 12 किलोमीटर, स्पीड है स्टूडेंट्स 15। अच्छा ये ओवर्स आएंगे, आपको पता है ना बेटा, यूनिट्स अगर आपको अच्छे से आते हैं देखें प्लीज, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, तो इसका जो नेट आंसर आएगा वो ओवर्स में आएगा। तो 12 आवर 15 आवर्स, तो 12 डिवाइडेड बाई 15, तो बेटा ये आता है 0.8 आवर। तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स। तो बेटा 0.8 इंटू 60, तो स्टूडेंट्स ये बनेगा 0.8 इंटू 60, तो ये बन जाएंगे मिनट्स। सो दैट विल बी 48 मिनट्स। अच्छा हम जगह कम पड़ गई है तो हम इसको नीचे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतने मिनट्स हैं जी,
उसको लगे हैं कहाँ से कहाँ तक जाने में, बी तक पहुँचने में, ठीक है। और वो निकला कब था, 10:25 पे। तो आफ्टर 48 मिनट्स बेटा वो यहाँ पे पहुँचता है। तो अब बताएं, 48 मिनट्स ऐड कर दें 25 मिनट्स में, तो 25 + 35 इज़ 11, ठीक है। सो ही विल रीच एट पॉइंट बी एट 11:30, ठीक है। दोबारा सुने बेटा, 48 मिनट्स है ना, तो आप 48 मिनट्स को ऐड कर दो 10:25 में, ठीक है। तो 10:25 + 35 मिनट्स क्या हो जाता है, 11। तो एंड देन 35, 48 - 35 इज 13। सो बेटा ये क्या होगा, टाइम विल बी 10:25 + 48 मिनट्स। तो बच्चों कितना हो जाएगा, इसको ऐड करें ना ज़रा, तो ये हो जाएगा 11.13 मिनट्स, ठीक है। सो ही विल रीच एट बी एट 11:30। ओके बच्चों, नेक्स्ट है the bearing of B from A. The bearing of B from A is 56 degree. B is 2 kilometer due west of C. West of C. Okay. So calculate AC. तो बेटा आपने AC फाइंड करना है। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैं क्यों ना कोसाइन रूल लगाऊं। तो बेटा कोसाइन रूल के लिए ये देखिए, मुझे ये बेटा लेंथ चाहिए ना, दिस लेंथ आई रिक्वायर्ड। तो इसके लिए बेटा मुझे बेसिकली ये वाला एंगल चाहिए। सो हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल बी, हाउ वी कैन फाइंड बच्चों दिस एंगल। सो इट इज सो सिंपल, देखें आप इसको एक्सटेंड करें ना, यहाँ बी पे बनाए नॉर्थ, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब बच्चों देखो ये एंगल है 56। सो व्हाट विल बी दिस एंगल, यू नो दैट it will be 180 minus 56. Okay बच्चों, so 180 minus 56 will be 124. So this angle is 124. Who will agree with me that this angle is 90? क्यों, ये देखिए जरा, कहता है B is due west of C, ठीक है बेटा, B C के वेस्ट में है, तो that is why this angle is 90 डिग्री, ठीक है। सो व्हाट विल बी द इनसाइड एंगल, तो वो होगा बच्चों 360 minus 90 minus 124, so that is going to be 360 minus 90 minus 124 is 146, so this angle is 146, ठीक है। अब आप लगाएं इस पे कोसाइन रूल, तो कैसे लगेगा, AC स्क्वायर is equals to 12 square plus 2 square minus 2 into 12 into 2 into cos 146, ठीक है, cos 146। So 12 square plus 2 square minus 2 times 12 times 2 times cos 146। तो बेटा जो भी आंसर आता है उसका आप क्या ले लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे। 187.7938, ठीक है बेटा। तो अब इसका लें स्क्रीन स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट, ये मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर। सो बच्चों ए सी क्या आता है, 13.70। ओके बच्चों, सो दिस इज 13.70। नेक्स्ट, ओके, there is one more part for this question. So C is the base of a cliff. The top of the cliff D is vertically above C. DC is perpendicular to BC and DC has length 105. बेटा जो perpendicular length छोटी सी है that is 105 meters. Calculate the angle of elevation of D from B. बेटा एक बात प्लीज याद रखिएगा कि आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो अगर ये एंगल फाइंड करना है बेटा यूनिट्स देख लें।
105 मीटर्स दिया हुआ है और जो बेस है वो किलोमीटर्स में है, ठीक है। तो आपने अगर रेशियो बनानी है, सो tan ऑफ x इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो स्टूडेंट्स आप पहले 2 किलोमीटर्स को कन्वर्ट करोगे मीटर्स में, सो दैट इज 2000 मीटर्स। सो 2000 आप डिवाइड करोगे इसको, ठीक है। सो x विल बी whatever the answer is 105 divided by 2000, ठीक है। शिफ्ट tan 105 divided by 2000, so it is, so x is going to be 3.01 degree. So moving on to next question, that is question 18. So a yacht sails a triangular route shown. The bearing of B from A is 135, BC is given 3.7, AC is also given 2.8, and the angle ABC is 42. So show that CAB बेटा कहता है कि ये वाला एंगल शो करें कि ये वाला एंगल है 62.2। तो देखिए बच्चों, लेट्स कॉल इट x। तो इसके ऑपोजिट साइड दी हुई है और इसके ऑपोजिट भी साइड दी हुई है। तो व्हेन टू पेयर्स आर कंप्लीटेड, पेयर्स मीन साइड के ऑपोजिट एंगल एंड दूसरे साइड के ऑपोजिट दूसरा एंगल, तो बेटा साइन रूल लग जाता है। तो क्या करोगे आप, लेट्स कॉल इट एंगल x। सो साइन x डिवाइडेड बाय 3.7 is equals to साइन 42 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट ये क्या हुआ 2.8। सो साइन x is equal to 3.7 into sine 42 whole divided by 2.8। So 3.7 into sine 42 divided by 2.8। So sine x is equal to 0.8842, 0.8842। So x is equals to sine inverse of 0.8842। So shift sign answer. So the final answer is 62.15 डिग्री बच्चों। और वो कह रहा है कि शो दैट अप टू 1 decimal places it will be 62.2 degree. Okay, so find the bearing of A from C. A from C, तो from C का मतलब है C पे बेटा बनाए नॉर्थ, C पे बनाते हैं नॉर्थ। सो नॉर्थ बेटा पैरेलल लाइंस होती हैं दोनों। सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल। इट इज़ वेरी सिंपल बच्चों, कैसे कैलकुलेट होगा देखें। आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं कैसे, 360 में से पूरा 360 में से बेटा 135 माइनस कर दें और x भी माइनस कर दें, ये आ जाएगा। फिर इसको 180 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस के इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वर्किंग सुन लें, 360 माइनस 135 माइनस प्रीवियस आंसर दैट वाज 62.15 डिग्री। तो क्या आता है 360 माइनस 135 माइनस 62.15, तो इट इज़ 162.85 डिग्री। ये बेटा कौन सा एंगल है, दिस वाज दिस एंगल, ठीक है। तो ये एंगल क्या आता है 162.85, 162.85। ठीक है। अब जो बेयरिंग है वो क्या होगी बच्चों, 180 माइनस 162.85। ओके बच्चों, सो 180 minus answer, so that is 17.15 degree.
So bearing is 17.15 degree. So it is 017.15 for 3 digits. Okay, बच्चों. So the yard sails from A to B to C to A. Basically A से B पे गई, B से C पे गई and C to A again. So calculate the total length of the route. The total length of the route. A to B, B to C, C to A. तो बेटा दो लेंथ्स तो आपको दी हुई हैं किलोमीटर्स में ना, तो यू हैव टू कैलकुलेट वन मोर लेंथ विच इज ए बी. अब ए बी कैसे फाइंड होगा? सो ए बी कैसे फाइंड होगा बच्चों? देखें, अगेन देर आर टू वेज टू फाइंड ए बी. ए बी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? सो बच्चों आप साइन रूल भी लगा सकते हैं, कोसाइन रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है. तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या लगाऊं. साइन रूल लगाएं तो ओके, लेट्स अप्लाई साइन. तो बेटा साइन रूल के लिए अगर मैंने ए बी फाइंड करना है तो मुझे इसकी ऑपोजिट वाला एंगल तो पता होना चाहिए. तो ये निकाल सकते हैं हम. हाउ? 180 माइनस 42 माइनस एक्स. तो एक्स कहाँ था? एक्स था 62.15. तो ये बच्चों आता है आपका एंगल ये वाला. तो 180 माइनस 42. को साइन भी लग सकता था लेकिन वो थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन थी. 75.85. So this is 75.85. Next, AB over sine 75.85 is equals to 3.2.8 divided by sine 42. ए बी की लेंथ क्या आएगी बच्चों? ए बी की लेंथ आएगी 2.8 इंटू साइन ऑफ 75.85 होल डिवाइडेड बाई sine 42. So make a fraction 2.8 sine 75.85 divided by sine 42. तो ये आएगा 4.0575. 4.0575. तो बच्चों जो टोटल लेंथ होगी वो क्या होगी? प्लस 3.7. अच्छा इसको आप ऐड भी करके शो कर दें. अच्छा मैं ऐड कर रहा हूँ बेटा सारे डायरेक्टली. प्लस 2.8. पूरे रूट की जो लेंथ है वो आपने फाइंड कर लेनी है. एंड दैट इज बेटा 10.56. सो इट इज़ एक्चुअली, मैं अगेन कैमरे से डर रहा हूँ कि ये ना मार्क्स काट लें. सो 4.0575 प्लस 3.7 प्लस 2.8 एंड द आंसर इज 10.56. ओके बच्चों 10.56 किलोमीटर टोटल लेंथ है बेटा रूट की. So students, so in the next class we will be doing from question 19 onwards. Okay students, Allah Hafiz.